नमस्कार। देव दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मुख्य सचिव ने कैम्बल बे बस टर्मिनस का किया उद्घाटन। पोर्ट ब्लेयर में व्यापक वृक्षारोपण अभियान का हुआ उद्घाटन। और द्वीप समूह में कल तक भारी वर्षा की चेतावनी। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दूर दराज के भागों में परिवहन सेवा को और बेहतर बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत कैम्बल बे में यात्री बस टर्मिनस का निर्माण किया गया। आज इस बस टर्मिनस का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। मुख्य सचिव ने सचिवालय परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए नए बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सिलसिले में सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में टर्मिनस का संक्षिप्त उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में बटन दबाकर कैम्बल बे स्थित नए बस टर्मिनस का विधिवत उद्घाटन किया। Population of 5,736 as per 2011 census, operates 11 buses on 6 routes, serving 710 daily passengers. The Campbell Bay Bus Terminus will be a key component of the multimodal transport network, enhancing accessibility and connectivity for pedestrians, ship passengers, and automobiles, thereby improving overall mobility and connectivity across the island. परिवहन सचिव विश्वेंद्र ने मुख्य सचिव को बस सेवा और यात्री टर्मिनस के बारे में बताया। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने अपने संबोधन में कैम्बल बे के लोगों से अनुरोध किया कि बस टर्मिनस को साफ सुथरा रखें। Especially the PWD and Transport Department. PWD must have constructed it, and looks like a very nice structure and very spacious, very nicely built. Though the number of buses are 11 only, but gradually once the number of buses will increase later in future, then this facility will provide a very valuable support to the road surface transport. As also, it is intended to be a multimodal hub for all the ship passengers and others. Probably they will also avail this facility of probably taking buses to the dockyard and shipyard. This was the intention. But anyway, in a area like this, a facility is required, especially people who want to take buses to different locations. At least in this weather condition, this is a very, very good facility so that they can take the buses comfortably, and also for maintaining the buses properly. This bus terminus I was told that
it has a provision of waiting hall for 100 passengers, which is quite substantial because you have 7-10 passengers flying on this entire Campbell Bay area on a daily basis. So the waiting hall itself can have 100 passengers, 2 bus parking bays, oil room, office room, garage, and inquiry counter in the ground floor, and the first floor RTO office, officers room and transit accommodation in the form of dormitory. So some of the housing problems also been taken care of with this, which is a very good thing that all those officers who do not get adequate houses can also get their housing demands met with this structure. So overall, I congratulate, especially my colleagues who are sitting there in the Campbell Bay, and all the people who are attending this function. A very big congratulations. Please ensure that this is kept in a good condition and it is cleaned up on a regular basis. गुड समारिटन क्लब अंडमान शाखा द्वारा व्यापक वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन समारोह आज आयोजित किया गया। पोर्ट ब्लेयर के टैगोर सभागार में वृक्षारोपण अभियान के उद्घाटन समारोह में अंडमान कॉलेज और लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस जयकुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में पर्यावरण एवं वन विभाग के एसीएफ सौंदरा पांडियन सम्माननीय अतिथि और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर पी लाल विशेष अतिथि थे। आरंभ में मुख्य अतिथि डॉक्टर एस जयकुमार और सम्माननीय अतिथि सहित अन्य लोगों ने टैगोर कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किए। टैगोर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों को गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन किया गया। समारोह में एसीएफ सौंदरा पांडियन ने वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि वृक्षारोपण एक पहल है जो बहुत सारे पेड़ों को काटने से हुए नुकसान की भरपाई करता है। ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव जो है बहुत सारे ट्री लॉसेस को कॉम्पनसेट करता है। उसी तरह इस क्लब का जो मास ट्री प्लांटिंग एफर्ट्स है जिसके लिए आज इन्होंने शिला रखा हुआ है, वो जो है कॉम्पनसेट करेगा हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट्स को फील्ड में लाने में। आप जितने पेड़ ज़्यादा गाड़ते जाएंगे तो जो एरिया हमारे डेवलपमेंट्स के लिए ज़रूरत होगा वो डेवलपमेंट्स के लिए उपलब्ध हो पाएगा। सो ऑल ऑफ अस वी नीड टू टेक कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट्स rather than thinking on one side। एक साइड में सोच के जाने से एक बैलेंस नहीं हो पाएगा। एंड मोस्ट ऑफ आवर प्लांटेशन हमारा टारगेट के हिसाब से फॉरेस्ट एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज वी यूज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ, सभी में हमने कॉन्सेंट्रेट किया है और ये ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव चलाया है, जिसमें एक लास्ट ईयर वी हैड अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ ईच वन प्लांट वन प्रोग्राम। हमारा फॉरेस्ट्री रिलेटेड स्पीशीज़ को छोड़कर हमने काफ़ी मात्रा में फ्रूट ट्रीज को रेस किया अपने नर्सरी में। 2022-23 एंड 2023-24 में हमने लार्ज स्केल प्लांटिंग अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज, रेवेन्यू एरियाज में कॉन्सेंट्रेट किया है और करीबन 1.5 लाख फ्रूट ट्री सीडलिंग्स एज ए प्लांटेशन और बाय डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये साउथ अंडमान के अंदर में ये कार्य किया है। और आपका ये जो एफर्ट उसी लाइन में है। समारोह के मुख्य अतिथि अंडमान और लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस जयकुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हर एक लोगों को वृक्षारोपण के टास्क को हाथ में लेना है। उन्होंने कहा कि पौधे ऊर्जा के स्रोत हैं। To avoid, we need the tree plantation. This is one of the sacred tasks actually. Each and every person should take this task.
Dr. Abdul Kalam, former president, advised everyone, in your life, at least 10 plants you have to grow. Why they have taken these people or scientists, even this other people asking us to go for tree plantation? The tree plants are the ultimate source of energy. Plant only gives everything for all living beings. You may not know many people know that photosynthesis is one process done by the plant. Only organism can synthesize its own food. It takes some part of that food for growth and development, and the remaining food is stored. And that food we are all using. Not only it's providing the food, and also it's making cleaning work. And it takes the carbon dioxide. We are burning like anything else is a fossil fuel. The fossil fuel, when you burn it, provide the carbon monoxide. When it released to the atmosphere, it takes on oxygen, it becomes carbon dioxide. Otherwise, if it is there only in carbon monoxide, we all will die soon. And for that also, the oxygen provided by the plant only. And you know very well that atmosphere covered with gas. The gas is a different type of gases are there in which you only oxygen 3%, nitrogen 80 to 80%, 82%. This 3% oxygen is very, very important. And also the carbon monoxide, carbon dioxide, it accumulates in the atmosphere. That will be highly dangerous. So the plants are taking the carbon dioxide and releasing the oxygen. So this purpose also we have to plant the trees. कार्यक्रम के दौरान गुड समारिटन क्लब के द्वीप समूह में अब तक की यात्रा पर वीडियो की प्रस्तुति की गई। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर पात्र उम्मीदवारों से कैजुअल ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए अनिवार्य योग्यता स्नातक है और इसके साथ ब्रॉडकास्टिंग व मैनेजमेंट में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। चुने जाने वाले उम्मीदवारों को कार्यक्रम तैयार करने और उसके प्रबंधन में सहयोग देना होगा। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार दूरदर्शन से आवेदन पत्र प्राप्त कर और उसे भरकर 31 मई तक देना होगा। आवेदन फॉर्म आगामी सोमवार 27 मई से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में कैजुअल एंकर्स और प्रेजेंटर्स का पैनल तैयार किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑडिशन और इंटरव्यू के दौर से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को किसी भी भाषा में ग्रेजुएट के साथ एक विषय हिंदी होना अनिवार्य है। 30 वर्ष आयु वर्ग के पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। इस पैनल के लिए आवेदन फॉर्म दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से कार्य दिवसों व समय पर प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 31 मई तक दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के कार्यक्रम प्रमुख के पास पहुंच जाने चाहिए। चुने जाने पर उम्मीदवारों को जरूरत पड़ने पर एंगेज किया जाएगा। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन मुख्य भूमि से एक पेशेवर फुटबॉल कोच द्वारा सभी आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए एक नियमित फुटबॉल कोचिंग शिविर का आयोजन करेगा। इच्छुक खिलाड़ियों से कल तक अपना पंजीकरण कराने का अनुरोध किया गया है। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर
9476079195 और 9933272019 पर संपर्क किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पोर्ट ब्लेयर की ओर से ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इच्छुक विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी चित्र बनाकर उसे 31 मई से पहले ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल पता है anrszis@gmail.com। विप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Toyota cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars. Delivers any model within 30 days at all India price. Come, take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair. Added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार क्रिकेट एसोसिएशन 28 मई से क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करेगा। आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में ओपन महिला क्रिकेट टूर्नामेंट 15 ओवर का बिना प्रवेश शुल्क के, 19 वर्ष से कम उम्र का ओपन T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट प्रवेश शुल्क 2,500 रुपये, सीनियर डिवीजन आमंत्रण 30 ओवर का नॉकआउट टूर्नामेंट प्रवेश शुल्क 3,500, सीनियर डिवीजन आमंत्रण 50 ओवर का नॉकआउट टूर्नामेंट बिना किसी प्रवेश शुल्क के और आमंत्रण इंटर डिस्ट्रिक्ट 30 ओवर का लीग व नॉकआउट टूर्नामेंट शामिल है। मौसम के अनुकूल नेताजी स्टेडियम और महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल मैदान पर खेले जाएंगे। अधिक स्पष्टीकरण के लिए मोबाइल नंबर 9933238343 और 9476062720 पर संपर्क किया जा सकता है। मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक भागों में भारी वर्षा हुई। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर रही। आज शाम 5:30 बजे तक मायाबंदर में सबसे अधिक 23 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम कार्यालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए मौसम चेतावनी जारी किया है। द्वीप समूह के दक्षिण मध्योत्तर अंडमान और निकोबार जिले में कुछ एक भागों में कल दोपहर 12 बजे तक भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान 7 से 20 सेंटीमीटर और 7 से 11 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवा चलेगी तथा आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। 26 मई को अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। कल से लेकर 28 मई तक 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मछुआरों को 28 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंडमान सागर तट पर लगभग 4 मीटर तक ऊंची लहरें की संभावना है। इस कारण समुद्र बहुत अधिक अशांत रहेगा। द्वीप समूह में मौसम की स्थिति के बारे में मौसम विभाग पोर्ट ब्लेयर के वैज्ञानिक डॉक्टर सुप्रीत कुमार ने दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को आगाह किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आज मानसून एक सक्रिय स्थिति में पहुंच गया है। आज हम लोगों ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखें और सुरक्षा बरतें। आज हम लोगों ने भारी से अति भारी वर्षा की संभावना को बताया है, जो 1-2 स्थानों पर उत्तर और मध्य अंडमान और साउथ अंडमान के जिले हैं उसमें 1-2 जगह पे हो सकती है और वज्रपात और मेघ गर्जन की भी संभावना है। उसके अलावा उसके साथ साथ अति तीव्र गति से हवा की भी संभावना व्यक्त की गई है, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने वाली है। मौसम विभाग की जो सूचनाएं और जो वार्निंग्स है उस पर ध्यान दें और मछुआरों को आज भी सलाह दी जाती है कि वो समुद्र में न जाए। आज से 28 तारीख तक उनको समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है और जो 1-2 जो मछुआरे बचे हुए हैं उनको सलाह दी जाती है कि इमीडिएटली वो वापस लौट आएँ। इसके अलावा जो डिप्रेशन जो मध्य बंगाल की खाड़ी में जो बना हुआ है वो हमसे दूर जा रहा है और वो कल एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में चक्रवात में बदल जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में राज्य और
जिला नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने को कहा गया है। इस बारे में अधिक जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक की खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर के NRM डिवीजन ने 25 से 29 मई तक की अवधि के लिए मौसम परामर्श बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में अगले 5 दिनों के दौरान द्वीप समूह में बिजली के साथ आंधी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने तथा मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इस अवधि में द्वीप समूह में अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 79 से 84% तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 78 से 80% हो सकती है। अधिकतर दक्षिण पश्चिमी दिशा से हवा चलने की संभावना है। इस अवधि के दौरान दक्षिण अंडमान, मध्योत्तर अंडमान और निकोबार जिले के लिए जारी मौसम आधारित कृषि सलाह में धान की नर्सरी के लिए भूमि का चयन ऊपरी क्षेत्र में जल स्रोत के निकट करें। वर्षा जारी रहने की संभावना है, अतः सब्जी के खेत से अतिरिक्त पानी का निकासी के लिए नाली बनाएं। तेज हवा चलने की संभावना के चलते केले के पौधों को हवा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सहारा प्रदान करने की सलाह दी जाती है। जड़ प्रणाली को सड़ने से बचाने के लिए काली मिर्च, चोई झाल और सुपारी में जल निकासी का प्रावधान किया जाना चाहिए। परिपक्व कार्प प्रजाति के ब्रूड मछलियों को हापा से अलग करें और इसके प्रजनन तथा अंडा संग्रह के लिए शाम के समय हापा में ओवाफ्रिम इंजेक्ट करें। जानवरों को बरसात के दौरान चरने न दें। निकोबार जिले के लिए जारी कृषि परामर्श में कैम्बल बे के किसान धान की नर्सरी के लिए भूमि का चयन ऊपरी क्षेत्र में जल स्रोत के निकट करें। वर्षा जारी रहने की संभावना है, अतः सब्जी के खेत से अतिरिक्त पानी का निकासी के लिए नाली बनाएं। नारियल की कटाई के बाद इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए कटे हुए नारियल को अच्छी हवादार जगह पर संग्रहित करें। परिपक्व कार्प प्रजाति के ब्रूड मछलियों को हापा से अलग करें और इसके प्रजनन तथा अंडा संग्रह के लिए शाम के समय हापा में हुआप्रिम इंजेक्ट करें। जानवरों को बरसात के दौरान चरने न दें। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा। यह जलयान कल दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा और इसकी वापसी कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा। यह जलयान कल दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और वहां से कल ही शाम 3:30 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए चलेगा। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 3 बजे पोर्ट ब्लेयर से चलेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। मुख्य सचिव ने कैम्बल बे बस टर्मिनस का किया उद्घाटन।
पोर्ट ब्लेयर में व्यापक वृक्षारोपण अभियान का हुआ उद्घाटन। और द्वीप समूह में कल तक भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।